ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಂಗೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನಾದವನು, ಮಹಾ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಹತ್ತು ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಂಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಒಡೆಯನು, ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನೇ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡು. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸು. ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. 12th ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಕರ್ತನೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಅಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ನಾವು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊರತೆಗಳುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಸಂಧಿ 7ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನ ತನಕ ನಾವು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು 17ನೇ ವಚನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕವು ಅದರ ಆಶೆಯು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವನು. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವನು. ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. सबसे बड़ी आशीष हम सभी विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए या विश्वासी बच्चों के लिए है, वो ये है परमेश्वर की मार्गदर्शन, God's guidance. So one of the beautiful thing in this world for the believers is
ಟು ಲಿವ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ದೇವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ इसीलिए रोमियो को लिखा हुआ पत्री उसका 8वां अध्याय 14 वचन कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान कहलाते हैं. सो परमेश्वर के संतान होने के नाते मैं और आप जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना बहुत ही ज़रूरी है. सो परमेश्वर की निर्देशता में या परमेश्वर की अगुवाई में हम कैसे जीते हैं? इट इज़ बाय द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा हमें उत्तेजना करता है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर कर चलाता है. और इसीलिए जो वचन हमने पढ़ा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 17 वचन ये कहता है कि ये पृथ्वी और इनकी सारी आशाएं जो है ठल जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वो सदा बना रहता है. जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वो सदा बना रहता है, या फिर परमेश्वर की इच्छा के अधीन में अपने जीवन को बिताता है वो सर्वदा बना रहता है. तो आज मैं और आप जो है अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अधीन में जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त करें. तो हम कैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताए? हाउ टू लिव अंडर द गॉड्स गाइडेंस. किस तरह से परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को बिताए? द फर्स्ट थिंग इज, पहली बात यह है, लिसनिंग एंड ओबेइंग द गॉड्स वॉइस. लिसनिंग एंड ओबेइंग गॉड्स वॉइस. परमेश्वर की वाणी को सुनना और परमेश्वर की वाणी के अनुसार चलना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लिसनिंग एंड ओबेइंग द गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की वाणी को सुनना. हम सभी विश्वासी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने पिछले कुछ संदेशों को सुनते आए हैं जो जेम्स अय्यर ने दिए हैं कि किस तरह से अपने जीवन को पवित्रता में जीना है और इस स्वतंत्रता जो यीशु मसीह ने हमें उद्धार के द्वारा दिया है उसमें जीना है. उसमें बने रहने के लिए मैं और आप जो है इस परमेश्वर की इच्छा के अधीन में रहकर अपने जीवन को बिताना है. बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन में हम देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर इस व्यक्ति को दर्शन देकर कहता है कि तू ऐसा मत कर. ये कौन है व्यक्ति? यहाँ पर ये इंसिडेंट हम सभी लोग जानते हैं. किस तरह से जानते हैं? अब्राम ने सारा को अपनी बहन करके कहा. अब्राम ने अपनी पत्नी सारा को बहन करके पुकारा. क्यों? क्योंकि इस देश के राजा जो थे अबीमेलेक बहुत ही प्रख्याति और बहुत ही प्रभावशाली थे, और उन्हें ये सोचा कि अगर हम यहाँ पर मैं पत्नी कहकर जाऊंगा तो ये राजा जो है मेरी पत्नी के लिए मुझे भी मार डालेगा और उसको अपने वश में करके जिएगा. इस तरह से वो सोचकर उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है. तो राजा अबीमेलेक उनकी बहन बोलकर सारा को अपने पास ले लेता है. लेने के बाद उसके पास जाने पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके पास जाने से रोका, सारा के पास जाने से रोका उस राजा को, और स्वप्न में अबीमेलेक को ये कहता है कि ये तू क्या करने वाला है? अब्राहम जो है इसकी पत्नी है सारा, और अगर तू उसके साथ करेगा, जो उसके साथ अगर तू अपनी पत्नी बनाएगा तो तू परमेश्वर का दंड को पाएगा, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेगा. और उसके बाद जो है अबीमेलेक तुरंत कहता है कि परमेश्वर मैं ये काम नहीं करूँगा, आपकी आधीन में मैं रहूँगा, आपकी आधीन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीऊँगा कहकर कहता है. और बाद में स्टोरी को कट शॉर्ट करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अबीमेलेक अब्राम के पास आता है, कहता है कि तूने क्या किया? अब्राम ने कहा कि मैं अपने आप को बचाने के लिए, सारा को बचाने के लिए ऐसा किया. लेकिन उसके बाद ये कहता है कि ऐसा मत कर, और तू और तेरी पत्नी को लेकर तू जा, तू जहाँ पर जाना चाहता है इस देश में जाकर रह, कहकर उनको कहता है. ये कहने के बाद अब्राम जो है उनके लिए प्रार्थना करता है, अबीमेलेक और उनकी पत्नी और उनके सारे लोगों के लिए प्रार्थना, दासियों के लिए प्रार्थना करता है. वचन ये कहता है कि वहाँ पर कि परमेश्वर ने उनके कोख को, यानी कि उनको संतान नहीं हुआ होता है,
और इसीलिए वहां पर कहता है परमेश्वर ने उनके कोख को छुआ, आशीष दिया और उनको खोल दिया कहकर। सो टुडे आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग इज, इस स्टोरी के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर जो है हमें उनकी आज्ञाओं को पूरी करने के लिए, उनकी आज्ञाओं के अधीन में रहने के लिए हमें वाणियों को देता है, आवाज़ों को देता है। उन दिनों में परमेश्वर स्वप्न में आकर अबीमेलेक को रोक दिया कि तो ये पाप मत कर। ठीक उसी तरह से अगर आज मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए जब पवित्र जीवन जीने के लिए, उस पवित्र चाल चलन के साथ उनके साथ चलने के लिए जो निर्धारित हम कर लेते हैं, तो वो हमें कभी त्यागता नहीं है, हमारी सहायता करता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 13 से 15 वचन में बहुत स्पष्ट रूप में ये लिखता है कि वो हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, पाप करने से हमें रोकने के लिए हमें वो तैयार है। मैं और आप जो है कोई परिस्थिति को सही तरह से जान नहीं पाते हैं, शैतान के जाल को जान नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों को जानते हुए जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं ना, उनकी इच्छा के अधीन होते हैं, उनकी वाणी को सुनने लगते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे सहायता करता है। हम हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ऐसी परीक्षाओं के घड़ी में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ जाता है। सुनिए इस बात को ध्यान से, जब भी हम परीक्षाओं में या फिर पाप करने की परिस्थिति में जब हम रहते हैं, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग हमारे अंदर आती है। अनकंफर्टेबल मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, और वो फीलिंग जब आती है उसी टाइम पर जो है एक इनर वॉइस, एक अंदरूनी आवाज आती है, पवित्र आत्मा जो हमें देता है, कहता है कि तू ऐसे मत कर। तो इसीलिए उस समय पर अगर मैं अधीन हो जाऊं उस वाणी के लिए, तब मेरे लिए जो है उस समय पर दो व्यक्ति मेरे लिए सहायता करते हैं। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। दो व्यक्ति, टू फोर्सेस, हाँ, टू थिंग्स, यानी कि दो चीजें जो है मेरे जीवन में वो काम करते उसी क्षण। कौन सा है? सबसे पहला जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर बसी हुई है। याकूब के पत्र उसका 4 अध्याय 4 और 5 वचन ये कहता है, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर बसी हुई है, अगर मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को उसको सौंप देता हूँ, तो वो मुझे जय देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र जब अनकंफर्टेबल स्थिति के अंदर परमेश्वर की वाणी को सुनते हुए अपने आप को जब हम आधीन करते हैं, देन गॉड गिव्स अस द विक्ट्री। और यही होती है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसकी इच्छा को पूरी करें, उसकी इच्छा के अधीन में अपने जीवन को हम बिताते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए हर एक परिस्थिति में होकर गुजरते समय एक व्यक्ति है जो मेरे लिए सहायता करता है। कैसे सहायता कर रहा है पता है? वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। आज भी मेरी सहायता करता है। कैसे? ही इज सिटिंग इन द हेवन। वो परमेश्वर के स्वर्ग में, वहां पर परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान होकर वहां पर बैठा हुआ है। बट ही इज इंटरसीडिंग फॉर मी एंड यू। वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए जो है आज भी इंटरसीड कर रहा है, मध्यस्थ कर रहा है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय 18 वचन कहता है, ही इज एबल टू हेल्प मी। वो मेरी मदद करता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 और 15 वचन, Hebrews chapter 4 verse 14 and 15, he is a great high priest। वो जो है एक महायाजक के रूप में मेरे और तुम्हारे बीच में जो है एक मध्यस्थी कर कर मुझे सहायता करता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 वचन कहता है कि वो मेरे लिए जो है एक एडवोकेट के रूप में मेरी ओर से जो है वो मुझे सहायता करता है। सो टुडे God is there to help us। प्रभु यीशु मसीह मेरे सहायता करने के लिए तैयार है। किस लिए? उसकी इच्छा के अधीन होकर उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। रॉबर्ट मूरे नाम के एक परमेश्वर के सेवक जो है इस तरह से कहते हैं, इफ आई कुड हियर क्राइस्ट प्रेइंग फॉर मी इन द नेक्स्ट रूम, आई विल नॉट फियर अ मिलियन एनिमीज। सो एट द डिस्टेंस मेक्स नो डिफरेंस बिकॉज ही इज प्रेइंग फॉर मी। क्योंकि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रिय लोगों, ये वचन जो है बहुत ही सुन के लीजिए। आज भी मसीह मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है नेक्स्ट रूम में। नेक्स्ट रूम किधर है? हो सकता है स्वर्ग में। डिस्टेंस डजंट मैटर, बट ही इज प्रेइंग फॉर मी सो दैट आई कुड हैव द विक्ट्री, ताकि मैं जय का जीवन जीऊँ। और इसीलिए आज मैं परमेश्वर के इच्छा के अधीन होकर जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। सो मैंने कहा, परमेश्वर के इच्छा के अधीन होकर जीवन बिताने के लिए पहले उसकी वाणी को सुने। दूसरा जो है, हमें
परमेश्वर के इच्छा के अधीन होकर जीवन जीने के लिए you and I need to discover the other side of the God's will. The second point, discovering the other sides of the God's will. परमेश्वर की इच्छा के दूसरे पहलू को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, हम जानते हैं। हर एक सिक्का काटा और चापा दो होते हैं। सिर्फ एक ही साइड नहीं देखना है बल्कि दूसरे साइड भी देखना है। सो परमेश्वर की इच्छा के मैं जानते समय केवल मेरी दृष्टि से इच्छा को जानते हुए नहीं बल्कि दूसरे साइड में भी क्या है वो मुझे जानना बहुत ही जरूरी है। और कई विश्वासी भाई बहन जो है इस इच्छा को यानी कि द अदर साइड ऑफ द गॉड्स विल को मिस कर देते हैं और कई बार अपने जीवन में बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे चीजों का आने के हारों का सामना करते हैं। आइज़ाया चैप्टर 22 वर्स 22, ये आइज़ाया उसका 22 और 22वां वचन, प्रकटीकरण 3 अध्याय 7वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7 इट से, व्हेन गॉड शट्स वन डोर नोबडी कैन ओपन, व्हेन गॉड ओपन्स वन डोर नोबडी कैन शट। यानी कि परमेश्वर जब एक द्वार को खोलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, और जब कोई द्वार को अगर वो बंद करता है तो उसे कोई नहीं खोल सकता है। तो आज मेरे लिए, तुम्हारे लिए, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर क्या करता है पता है? अपनी इच्छा को जब आगे बताता है, व्हाट ही डज इज मोस्टली ही क्लोजेस वन डोर, इफ इज क्लोजिंग वन डोर बट ही ओपन्स द अदर डोर, एक नए द्वार को खोलता है। सो दिस ट्रूथ आई शुड अंडरस्टैंड, मैं इस बात को तो जो है अच्छी तरह से जानना जरूरी है। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग रीति से लेते हैं, सोचते हैं अगर द्वार बंद है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से, ऐसा सोचते हैं। द्वार खुला है तो ये परमेश्वर की ओर से हम आगे निकल जाए। नॉट इन दैट वे, हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। कई बार परमेश्वर स्टॉप्स यानी कि रोकता है, बंद करता है। इन बंद दरवाजों के द्वारा परमेश्वर हमें नई जगह पर ले जाना चाहता है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड्स विल फ्रॉम द अदर साइड। परमेश्वर की दृष्टि से उनकी इच्छा को जानना बहुत ही जरूरी है। Many a times God talks through the stop door. स्टॉप्स जो होते हैं हमारे जीवन के अंदर, स्टॉप्स के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। भजन संहिता 37-23 वचन ये कहता है कि हर एक धर्मी के चाल चलन को, यानी कि उनके स्टेप्स को, उनके कदम को जो है परमेश्वर ऑर्डर देता है। द स्टेप्स ऑफ राइचस मैन आर ऑर्डर्ड बाय गॉड। गॉड ऑर्डर्स द स्टेप्स ऑफ अ राइचस मैन। इन द सिमिलर वे गॉड ऑल्सो ऑर्डर्स द स्टॉप्स इन द राइचस पर्सन। उनके जीवन में कई बार ऐसे स्टॉप्स आते हैं, लेकिन इस स्टॉप के द्वारा परमेश्वर एक नई चीज को खोलता है। रेचल के जीवन के बारे में अगर हम सुनते हैं, उनको बच्चे नहीं थे लेकिन उसके बाद में उनको बच्चे होते हैं। बट यू नो, जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 31, जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 2, इट सेज दैट गॉड स्टॉप्ड हर वुम्ब। परमेश्वर ने रेचल की गर्भ को बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद और वचन आगे कहता है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 22 से 24 वचन में, अगेन गॉड ओपन्ड हर वुम्ब एंड देन शी गॉट अ जोसेफ। उनको जो है यूसुफ मिला। यूसुफ के बारे में हमने सुना है, हाउ ही हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर। देन द 10 ट्राइब्स, 10 ट्राइब और 12 कुल को जो है परमेश्वर इनके द्वारा उत्पन्न करता है करके हम देखते हैं। So God brings sometimes this stops, okay, so that we will be able to understand His will in a different way. Whatever His will is there, उनकी जो will है उसको हम जाने। Apostles के बारे में हम सुनेंगे नए नियम में। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 6 से लेकर 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, Acts 16, 6-10, The apostles were stopped in Asia and Bithynia for Macedonia. मैसिडोनिया इस जगह पर जाने के लिए, इस शहर में जाने के लिए इन लोगों को एशिया और बिथुनिया में रोका गया। जब उनको रोका गया तो उन्होंने ये नहीं सोच लिया कि हमारी यहीं पर सेवा की अंत है। तो उन्होंने ये सोचा ठीक है, नो प्रॉब्लम, और ये भी नहीं सोचा कि ये शैतान हमें रोक रहा है। ओके, हो सकता है, बट नो प्रॉब्लम। बट दे डिड नॉट सिट आइडली देयर, ऐसे ही नहीं बैठ गए, बट दे केप्ट ऑन गोइंग फॉर प्रीचिंग द गॉस्पेल। उन्होंने और आगे चलते गए।
एंड व्हेन दे सेंस्ड, जब उन्होंने जान लिया कि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई हो रही है, सो देन दे रिलैक्स एंड टुक अ डिफरेंट टर्न। उन्होंने वहां से डिफरेंट टर्न लेकर चले गए। सो माय डियर, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ पता है? उसके बाद उन्होंने वहां पर बंद दरवाजे मैसेडोनिया के लिए देखा, लेकिन और एक दरवाजा यहाँ पर खुल गया। वो है फिलिपियो शहर के अंदर, जहां पर लिडिया के हृदय को परमेश्वर ने ओपन किया था और उस घर में उन्होंने कलीसिया की स्थापना की करके हम देखते हैं। दूसरे जगह पर जेल के अंदर परमेश्वर ने जेलर के दरवाजे को, हृदय के द्वार को उन्होंने खोला, जिनके द्वारा गॉस्पेल यानी कि सुसमाचार को वहां पर प्रचार किया करके हम देखते हैं। सो गॉड व्हेन ही स्टॉप्स, ही ओपन्स द अदर डोर। सो आई शुड नो, आई शुड एबल टू डिस्कवर, ये नहीं कहना कि मुझे यहीं पर रुक जाना है, बल्कि दूसरे द्वार की ओर तलाश कर परमेश्वर की ओर से मुझे जाना है। एक स्टोरी मैं कहना चाहूँगा इस समय। फैनी क्रॉसबाय, FANNY फैनी क्रॉसबाय नाम की ये परमेश्वर की सेविका, मिशनरी, इन्होंने जो है करीबन 8000 हिम्स को लिखी है। टू गॉड बी द ग्लोरी, ब्लेसेड एश्योरेंस, ये सारे गीत जो है, ऐसे गीत जो हम इंग्लिश में हिंदी हिम्स कहते हैं, संगीता कहते हैं, उन्होंने 8000 हिम्स को लिखे हैं। और ये गीत जो है इतने फेमस हुए हैं वर्ल्ड के अंदर। लेकिन प्रिय लोगों, आपको पता है कि फैनी क्रॉसबाय कौन थी? शी वॉज अ पोर लिटिल गर्ल, बहुत ही गरीब परिवार से आई हुई लड़की। लेकिन और एक बात ये थी, शी वॉज नॉट एबल टू सी फ्रॉम हर आफ्टर शी वॉज बॉर्न। 6 महीने के बाद, 6 दिन के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने 8000 गीतों को उन्होंने लिखा। अ ब्लाइंड गर्ल, अ ब्लाइंड वुमेन, द ब्लाइंडनेस नेवर स्टॉप्ड हर टू डू द गॉड्स विल। उनकी अंधेपन की चीजें है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो रोकी नहीं, बल्कि परमेश्वर की और प्रेरणा पाकर उन्होंने कहा कि इफ दिस इज नॉट द स्टॉप, बट आई विल सी बियॉन्ड दिस अदर साइड। उन्होंने दूसरे साइड में देख करके आगे बढ़ते गए। प्रिय लोगों, आज हम सभी लोग इस लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 साल से जो है हम जूझ रहे हैं। कई लोग जो है अपने डिफिकल्ट मोड पर है, एक जॉब खोए हैं, दूसरा जॉब खोए हैं, तीसरा जॉब खो रहे हैं, डोंट नो व्हाट टू डू, स्टॉप बाय स्टॉप इज कमिंग, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, डोंट वेट देयर, वहीं पर ना रुके। गॉड हैज वन मोर ओपन डोर, परमेश्वर और एक द्वार हमारे लिए खोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को ऐसे ही आगे करते जाए। फैमिली में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हम सह रहे हैं, एक रिलेटिव के बाद दूसरे रिलेटिव हम डेथ को देख रहे हैं। हमारा बिजनेस जो है एकदम अच्छे मुकाम पर चलने वाला नीचे टप करके उतर के आ रहा है। कई बार हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो है हमारे घर में जिससे हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, शायद हो सकता है हमारे बच्चों के विषय में हो या फिर और कोई प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, उससे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुलझाने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। स्टॉप्स आर कमिंग, स्टॉप्स आते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते समय इस स्टॉप को ना देखे, उसके दूसरे साइड को भी देखे जहाँ पर परमेश्वर एक नए द्वार को खोलना चाहता है। कीप ऑन डूइंग द गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा के अधीन में रहकर हम जिए। तीसरा जो है हम देखते हैं, परमेश्वर की अधीन में, इच्छा के अधीन में रहने के लिए अंडरस्टैंड द डिवाइन पर्पस ऑफ गॉड्स विल। अंडरस्टैंड द डिवाइन पर्पस ऑफ गॉड्स विल, हम परमेश्वर की इच्छा की दैविक उद्देश्य को जाने। Let us understand the divine purpose of God's will. परमेश्वर की इच्छा को हम जाने प्रिय लोगों, परमेश्वर के दैविक उद्देश्य को हम जाने। परमेश्वर जो भी काम करता है ना, उसके पीछे एक मकसद रखता है। द टावर ऑफ बाबेल, मैं इसके द्वारा एक उदाहरण देना चाहूँगा। बाबेल की टावर को जो हम देखते हैं परमेश्वर ने रोका, उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय 1 से लेकर 9वें वचन के अंदर हम पाते हैं, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर उन्होंने ये कोशिश किया कि हम एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत बनाएंगे, वो आकाश तक ऊपर जाएगी और हम सब लोग यहीं पर रहकर अच्छे से अपने जीवन को बिताएंगे, एक शहर को बनाएंगे। बट दैट वॉज नॉट गॉड्स विल, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और इसीलिए परमेश्वर ने उनके बीच में आकर उनको गड़बड़ी की, यानी कि उनके लैंग्वेज को अलग अलग कर दिया, और जिसके द्वारा वहां पर वो रुके नहीं बल्कि सब लोग स्कैटर हो गए। और यही परमेश्वर की इच्छा थी। उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय 1 वचन के अंदर देखते हैं, गॉड्स कमांड वाज टू फिल द अर्थ
पूरे भूमि पर जाकर तुम समाने के लिए उनको कहा। He was wanted to scatter, not to gather. गैदर करने के लिए, मैंने उनको स्कैटर करने के लिए एक इच्छा रखी थी। इसीलिए वो इच्छा को नहीं जानने की वजह से उन लोग ने करने गए, परमेश्वर ने उसे रोका। कई बार परमेश्वर जो करने की इच्छा उनके मकसद रखता है, what is the purpose, you know, that in order to fulfill that purpose sometimes God brings the stops। परमेश्वर हमें रोकता है उन चीज़ों को हमारे जीवन के अंदर। आज इस परफेक्ट विल को, उनके प्लान को पूर्ण रूप से हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मल टेंडेंसी हम सभी लोगों की होती है कि हम थोड़ा सा फोकस करके उतना ही जानने की कोशिश करते हैं। वाई, व्हाट इज द गॉड्स विल फॉर दिस, फॉर माई लाइफ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई दिस थिंग, मेरे 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 ऐसे सोच रहे। लेकिन इसके अलावा हम थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजनाएं इन सभी के लिए क्या है, उनके अंदर मैं अपने आप को देखना है कि लॉर्ड, ये आपकी जो इच्छा है इसको मैं कैसे पूरा कर सकूंगा, कैसे पूरा कर पाऊंगा। पूरे जगत की उद्धार को परमेश्वर ने एक प्लान बनाया है, लेकिन पूरे जगत को उद्धार को लाने के लिए सुसमाचार सुनाने वाले की आवश्यकता है। तो सुसमाचार सुनाने वाले क्या सभी कि एक ही व्यक्ति पूरे दुनिया में जाकर सुना पाएगा? नो, God wants to choose one by one, whoever is ready, so that he will go and proclaim my love। मेरे वचन को, मेरे प्यार को बताएगा, मेरे वचन को, मेरे प्यार को अपने जीवन के द्वारा जिएगा छोटी छोटी जगह पर। He wants to see that। लेकिन पूरी बड़ी इच्छा क्या है उनकी? वो है कि सभी लोग जाने। बट स्मॉल, दैट इन दैट माई पार्ट इज वेरी स्मॉल। मेरे प्रिय लोगों, आज मुझे इसे पूरी करना है। अंडरस्टैंड द गॉड्स विल इन अ डिवाइन पर्पस। ब्रदर आर स्टैनली, जिनकी कई किताबें और अच्छे टीचिंग है उनकी, वो ये कहते हैं कि जब उनकी इच्छा थी कि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में पढ़ने की उनकी इच्छा थी, लेकिन उनको वहाँ पर एडमिशन ना मिला। एक छोटे से कॉलेज में वो गए, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन उस पढ़ाई करते समय पर वहाँ पर उन्होंने प्रेयर क्लब्स, फ्रेंड्स क्लब स्टार्ट किए, जिसके द्वारा आज ब्लेसिंग विथ यूथ मिशन, ये हम सभी लोग जानते हैं, ब्लेसिंग यूथ मिशन कर संस्था है जिन्होंने स्थापना की है। बहुत सारे मिशनरीज को उन्होंने भेजा है, कई किताबें लिखी है। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। गॉड, आर स्टैनली को बड़े कॉलेज में जाना था, but God wanted him to go to small college where he could start a prayer club, friends club, and then he started a blessing youth mission। The other side और broader perspective, परमेश्वर की इच्छा को जो है मुझे और तुम्हें जानकर आज चलना है। Many young people, बहुत सारे जवान लोग जो हैं आज इस बात को कंफ्यूज में अपने जीवन को बिता रहे हैं कि मैं अकेला चाहूँ या फिर मुझे क्या करना है, आगे कैसे करना है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की, सेवा को पूरी करने की। Understand God's will and His divine purpose for your life। परमेश्वर की इच्छा को और उनकी दैविक मकसद को आप जानने का प्रयास करें। Let me wind up here। मैं यहाँ पर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। डॉक्टर विलियम कैरी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। He was a missionary to India। इंडिया में मिशनरी के रूप में आए। He was a cobbler। वो जो है एक मोची थे, मोची का काम उन्होंने किया, दुकान में काम किए हैं और उसके बाद पास्टर बनकर सेवा की है। लेकिन फाइनली ही केम टू इंडिया। जब इंडिया में आए, उनके एक दोस्त के साथ आए, थॉमस नाम के व्यक्ति के साथ। इंडिया में आने के बाद भी यहाँ पर परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी, उनके दोस्त थॉमस ने उनको छोड़ दिया। विलियम कैरी और उनके परिवार जो है यहाँ पर इंडिया में बसे, लेकिन क्या वो पता है लोगों, कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में उस समय पर मलेरिया, खोलेरा, इस तरह की बीमारियाँ थी। खुद विलियम कैरी मलेरिया से पीड़ित हो गए और उनका बेटा, छोटा बेटा जो है, खोलेरा होकर, डिसेंट्री होकर वे मर गए। ये सारी परिस्थितियों को ना झेल पाई उनकी पत्नी, दिमागी तौर से जो है उनके बिगड़ गई और उनको एक रूम में कन्फाइन करके रखना पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो भी गुजर गई। वापस से उन्होंने वहीं पर छोड़ा नहीं। He did not leave there। यहीं पर छोड़ा नहीं, बल्कि what happened, you know, again he came back। वापस से वो आए, फिर से उन्होंने जो है यहाँ के कुछ लोगों के साथ मिले, जहाँ पर परमेश्वर ने उनको कुछ लोगों को मिला है। विलियम वार्ड नाम के व्यक्ति के साथ उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को ओपन किया। अपने न्यू टेस्टामेंट के, बाइबल के नए नियम को उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया और उसके बाद उन्होंने उसको प्रिंट किया। केवल इतना ही नहीं, मराठी, हिंदी, संस्कृत, ओरिया, इन ऑल दिस लैंग्वेजेस ही ट्रांसलेटेड द बाइबल। बहुत सारा है कहने के लिए,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर डॉक्टर विलियम कैरी के बात को जीवन को लेकर मैनी स्टॉप्स के, बहुत सारे स्टॉप्स आए, बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर, बट ही वांटेड टू डू द गॉड्स विल, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते थे। सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड लिव अंडर द गॉड्स गाइडेंस। परमेश्वर की दैविक अगुवाई में उनकी दैविक इच्छा को पूरी करने में अपने जीवन को बिताएं। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लॉर्ड हमें मदद कर कि आपकी अगुवाई को हम जानें, आपकी वाणी को हम सुने, आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छा को हमारे जीवन में आप प्रकट करके चलाएं, ताकि हम आपकी इच्छा के अधीन होकर अपने जीवन को बिताने के लिए मदद करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्विक अनाउंसमेंट्स आप सबके लिए। हमारा लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी के आधार पर हमारी ऑनलाइन सर्विसेज इस तरह से हर संडे सुबह 11 बजे यूट्यूब लाइव के द्वारा चलाई जाएगी, और हमारे बुधवार की आराधना फेसबुक लाइव के द्वारा चलाई जाएगी। हमारे जवानों की सभा जूम पर संडे के दिन शाम को 6 बजे चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त और किसी को भी प्रेयर की ज़रूरत है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। स्पेशल प्रेयर जिनको भी चाहिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन जिन्होंने भी नहीं लिया है, कृपया आप वैक्सीन लीजिए, और फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड जैसा होता है वैसे आप लोग वैक्सीन पूरा कर कर चलने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द परमेश्वर हमारे लॉकडाउन को खोले, हमारे सारे जो तकलीफ़ें हैं उसको दूर करे, और आराधनाओं को चालू करने के लिए मदद करें। गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन लेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। हम सभी लोग आपकी इच्छा के अधीन होकर चलना चाहते हैं। पिता, हमें मदद कर प्रभु। इतना ही नहीं बल्कि जो हम भेंट को अर्पण करते हैं उस भेंटों को आप आशीष दें प्रभु, और आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए इसे इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हे देव्यावादा प्रीतिगे नाबादलेनु खोडवे संपत्तु प्राणायावतु कोट्याग्योएनु सालादु। ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord. God bless you all. Amen. तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को
भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं,